It's D-Day for polling in Rajasthan. People are heading out to cast their votes across the state. The elections are being contested by 1,862 candidates and the total number of voters is 5.25 crores in the state. Of these, 1.71 crore voters are between the ages of 18 and 30 and 22.61 lakhs are new voters from the 18 to 19 age group. As voters queue up outside polling booths, the burning question is, what is the Janta's pulse? What are the issues that people of Rajasthan have in mind while casting their votes, and what will be the mandate of the state in these assembly polls? Remember, viewers, these polls are crucial as they are essentially a semi-final for the 2024 general elections. Yes, India is slated to head for the biggest democratic exercise in a mere 6 months, and this is a preliminary test in the political arena for the same. Now, remember, in Rajasthan particularly, the battle is primarily between the BJP and the Congress. It's a big test for both the parties. Will the Congress manage to retain power, or will the Modi factor work in favor of the BJP and bolster its prospects? So those, of course, are the big details we are tracking for you from Rajasthan, where, of course, voting has commenced since this morning. Voting, of course, is on. And for more details on voting trends, voting numbers and other statistics related to the Rajasthan polling, let's go straight across to my colleague Pia. Indeed, Uday, comprehensive picture you have presented, but let's take a look at some of the key statistics. This is, of course, data that has come out till 1 p.m. regarding the voter turnout. Sadarpura up first. This is a very crucial constituency. This is the constituency from which incumbent Chief Minister Ashok Gehlot is contesting. In 2018, the overall voter turnout was 67.09%. Meanwhile, midday statistics till now, 37.89% voter turnout till 1 p.m. Moving on to Tong constituency. This is the constituency from where Sachin Pilot is contesting, another crucial phase from the Congress party. In 2018, the voter turnout was 76.61%, and right now, today itself, the voter turnout is 42.01% till 1 o'clock. Another crucial constituency, Jalrapattan. This is the place from where BJP stalwart Vasundhara Raje is in fact contesting. Back in 2018, 5 years ago, the overall voter turnout was 78.43%. Meanwhile, right now, at the moment till 1 o'clock, it has been recorded at 43.11%. But this is not all. There are certain other constituencies such as Jotwara, where the voter turnout in 2018 was at 72.31, and right now it is at around 40%. So we can see the trends. It's currently from around 38 to 40% in these constituencies. Voter turnout, of course, in Vidyadhar Nagar, another crucial constituency. In 2018, it was 70.29%. Meanwhile, right now, it is 36.24%, which has been recorded till 1 o'clock. Battle, of course, between the Bharatiya Janata Party and the Congress, primarily in this state. But Lakshmangarh, another crucial constituency, has recorded 43.52% voter turnout till 1 o'clock. Earlier in 2018, this was, of course, 74.39%. We've, of course, seen queues of people come out and cast their vote. But shifting our focus to another crucial constituency, the Rajsamand constituency. In 2018, the overall voter turnout was 76.59% overall. Meanwhile, right now, it is at 38.15% as of 1 o'clock. Things remain marginally better in Sri Madhopur constituency, where the voter turnout has been recorded at 38.42% till 1 o'clock. You can see, of course, the statistic right there on your screens for 2018 at 72.75%. But last but not least, let's take a look at Udaipur, another crucial area where the BJP versus Congress battle is underway. In 2018, the picture was comparatively more bleak than the other constituencies we've just seen, with the voter turnout recorded at 67.06%. But right now in 2023, the voter turnout is at 36.40%. Back to you, Uday. Well, let's certainly hope those numbers rise beyond those statistics that they stood at in 2018 as the day progresses and as, of course, voting heads into the evening hours. But let's quickly go across now on ground to our colleagues as well who are reporting on polling. Rahul is joining us from Rajsamand. Rahul, what is the scenario in Rajsamand? What are the numbers they're looking like, and what are voters telling you? What are the issues top of their mind today? जी, राजसमंद में यहाँ पर लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। यहाँ पर
महिलाओं में भी काफी उत्साह देखा जा रहा है। आपको बता दें कि राजसमंद के अंदर या राजस्थान के अंदर ये मतदान हो रहा है, यहाँ पर काफी सारा उत्साह देखा जा रहा है। हम यहाँ पर आम लोगों से बात करें, किस तरह से यहाँ पर लोगों में रुझाव लग रहा है, किस तरह से देख रहे हैं आज यहाँ पर मतदान हो रहा है, किस तरह से आपको लग रहा है? मतदान देना हमारा अधिकार है और हम इसके लिए ही सारी महिलाएं भी जागरूक होकर यहाँ पर मतदान देने आई है और अधिक से अधिक संख्या में मतदान हो रहा है यहाँ पे। और एक महिला की सुरक्षा के लिए मतदान देना भी आवश्यक है कि अच्छी पार्टी को हम चुनेंगे तो हमारी भी सुरक्षा होगी। जी, क्या क्या मुद्दे रहते हैं, क्या क्या किस मुद्दे पर इस बार सरकार बननी चाहिए, क्या क्या आप युवा हैं, किस तरह आप इसको सोचते हैं? जी, देखो, एजुकेशन लेवल से भी हमें सपोर्ट मिलेगा अच्छा अगर हम युवा नेता चुनेंगे तो। और उसके बाद ये है कि महिला सुरक्षा, गर्ल्स की सिक्योरिटी, हर चीज के लिए बेनिफिशियल रहेगा। जी, उसी के साथ में कुछ ऐसे वोटर भी हैं जिन्होंने फर्स्ट बार अपने मतों का उपयोग कर रहे हैं। किस तरह देखते हैं बेटा आप इस चीज को, आज आप मत देने आ रहे हैं, किस तरह देख रहे हैं? अच्छा लग रहा है हमको देखकर, फर्स्ट टाइम वोटर हमारा। जी, क्या क्या मुद्दे रहने चाहिए विकास के, किस तरह से विकास होना चाहिए, क्या क्या सरकार अभी योजना दे रही है, क्या योजना आने वाली सरकार की अच्छी रहनी चाहिए और क्या अभी वाली सरकार की योजना अच्छी लग रही है आपको? अभी वाली की अच्छी लग रही है और आगे क्या योजना अच्छी लग रही है आपको अभी वाली सरकार की? जो भी कर रही है लोगों के लिए, सुरक्षा के लिए जो भी कर रही है वो सब करना चाहिए, आगे भी इनको करना चाहिए। ऐसा नहीं कि वोट लेके ही चले जाए। जी, और वोट दे रहे हैं तो उनको करना भी चाहिए और सुरक्षा। नहीं, आप इनके लिए धूप छांव में परेशान हो रहे होते हैं, इन लोगों का भी ये कर्तव्य होता है कि ये लोग आपके लिए भी कार्य करें। जी, कुछ कहना चाहिए आप किस तरह? जी, क्या नाम है आपका? प्राची जी, वोट दे रहे हैं, किस तरह देखते हैं अभी आप मतदान करने आए, किस तरह? जिस तरह से विकास हो रहा है उस हिसाब से देखना चाहिए कि किसको वोट देना है। जी, आने वाली सरकार की क्या क्या योजना ऐसी होनी चाहिए जो महिलाओं के हित में हो, किस तरह की योजनाएं होनी चाहिए? महिलाओं के हित में भी हो, शिक्षा के हित में भी हो और महंगाई। अभी आप क्या देखते हैं, अभी वाली सरकारों में क्या कमियां रही है और आने वाली सरकारों को क्या कमियां पूरी करनी चाहिए? जी, अभी अगर मैं स्टूडेंट के रूप में बोलूँ तो जो भी वैकेंसीज वगैरह आई है उनको सही तरीके से कराना चाहिए, जो भी लीक हो रहे हैं उनको मतलब सही जांच होनी चाहिए उसकी और सही तरीके से वैकेंसी को पूरा करना चाहिए। जी, और भी अभी जो कुछ मामले जैसे बीजेपी है तो वो मोदी के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस है तो वो योजनाओं के अशोक गहलोत के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो किस तरह देखते हैं इन दोनों पार्टियों को आप? अब ये तो जो अपने विकास के हिसाब से हम देखते हैं, किसी के पक्ष में बोलना नहीं चाहता। जी, काफी सारी महिला यहाँ पर आ रही हैं और अपने मतों का उपयोग कर रही है। तो देखना होगा महिला वोटर जो है, जो काफ़ी संख्या में वो आ रही है राजसमंद में, वो किसके तरफ जाती है, ये तो हमें 3 तारीख को ही पता चलेगा। मगर फिलहाल के लिए बने रहिए आप हमारे संग। राहुल, मैं विष्णु शर्मा का रुख करना चाहता हूँ, जयपुर से इस वक्त जुड़ गए हमारे संग। विष्णु, विच विधानसभा यू प्रेजेंट एट इन जयपुर एंड ओवरऑल इन जयपुर विच areas are seeing a higher voter turnout and which areas are seeing voter turnout which is low so far? देखिए, करीब पूरे प्रदेश भर की बात की जाए तो 40% के आसपास वोटिंग प्रदेश में हुई है और मैं फिलहाल सिविल लाइन विधानसभा में मौजूद हूँ। और जयपुर की अगर सीटों की बात की जाए तो पिछली बार 2018 में से 8 में से 5 सीटें कांग्रेस के पास थी और 3 बीजेपी के पास थी। कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती है कि उस जीत को बरकरार रखने की। कुछ लोग हैं आप वोट डाल रहे हैं, कुछ ईवीएम्स में भी कुछ परेशानी देखी जा रही है जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी देर से इंतजार करना पड़ रहा है। उनसे ही बातचीत करते हैं। अंकल, आप कब से इंतजार? हम कम से कम 1 घंटे से इंतजार कर रहे हैं, सबका पाँव दुखने लग गया। पूछो बुजुर्ग लोगों को क्या परेशानी आ रही, क्यों परेशानी है? अंदर पूछो ना, अंदर जाके पूछो। हम तो लाइन में खड़े हैं, हम तो मत देवे तो ही मरे, नहीं देवे तो ही मरे। तो देखिए, काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि घंटों से लाइनों में खड़े हैं। अंकल, कब से खड़े हैं? पीछे देखो, मेरी तो घंटा भर से ज्यादा हो गया हमें। क्या परिस्थिति है? कब से खड़े हैं आप? 1 घंटा हो गया भैया। क्या इस बार मैम महिलाओं को लेके बहुत बात की गई दोनों ही पार्टियों ने, आप क्या देख के वोट कर रहे हैं? पार्टी देख के या फिर क्या चाहते हैं आने वाली सरकार से? मोदी वो आपका पर्सनल है। अगर आप क्या चाहते हैं कि सरकार आए, क्या कुछ करे आपके लिए? जो करती आ रही है वही करे, अच्छा डेवलपमेंट अच्छा करे। अभी आप क्या देख के वोट कर रहे हैं? क्या किसी के पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनको देख के वोट कर रहे हैं या पार्टी को देख के वोट कर रहे हैं? हम लोग पार्टी को देख के वोट कर रहे हैं। क्या क्या मुद्दे हैं आपके लोकल के? क्या विकास रह गया अधूरा जो आने वाले समय में आप पूरा करवाना चाहते हैं? बेसिक हाइजीन, क्लीनिंग,
इससे ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट से, या हेल्थ अपने हर एरिया के अंदर, जैसे दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक है, वैसे यहाँ पे भी हर सड़कों की सफाई सोमो हाउस में सड़कों की सफाई हो और कचरा उठाया जाए बराबर। कचरा बहुत कम उठता है। जो कॉर्नर है ना अपना, जहाँ पे उत्तम शर्मा जी का बोर्ड लगा हुआ है, वहाँ पे कचरा हमेशा पड़ा रहता है और वो कचरा मुझे बहुत इरिटेट करता है। तो देखिए कुछ और भी लोग हैं। सर, आप क्या देख के वोट कर रहे हैं? क्या चाहते हैं अपने उम्मीदवार से, गवर्नमेंट से? क्या उम्मीद है? व्यवस्थाएं थोड़ी और सुधरें, पूरा इसका जो सिस्टम है उस पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, फोकस रहे, मॉनिटरिंग अच्छी से हो सके ताकि चीज़ों में जो क्लैरिटी है वो पूरी आए, वो सारी चीज़ें चाहिए उसके अंदर। देखिए राजधानी में रहने के बाद भी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा, इस वजह से लगातार लोगों को परेशानी है। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर, आप वोट डालने आए हैं, क्या देख के वोट कर रहे हैं? क्या कैंडिडेट को देख के, पार्टी को देख के, किस तरह का? नहीं, कैंडिडेट को देख के वोट कर रहे हैं। कैंडिडेट को परख के फिर वोट? बिल्कुल पार्टी का। इस बार काफ़ी मुद्दे राजस्थान के चुनाव में रहे, क्या आपको कौन से मुद्दे ने ज़्यादा प्रभावित किया? मुद्दे तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन कुछ अच्छी चीज़ें हुई है उसको देख के हम तो वोट कर रहे हैं। कुछ अच्छी चीज़ें हुई हैं उनको देख के वोट कर रहे हैं। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी। मैम आप वोट डालने आए हो, क्या कैंडिडेट को देख के वोट कर रहे हो, पार्टी को देख के वोट? अकॉर्डिंग टू द पार्टी ओनली। पार्टी को देख के वोट कर रहे हो। तो देखिए अलग अलग लोगों के विचार हैं, अलग अलग तरीके से वोट यहाँ पर डाले जा रहे हैं। थोड़ी परेशानी कई पोलिंग बूथों पर देखने को मिल रही है, लेकिन बावजूद उसके लगातार लोग अपने जो मताधिकार का जो उपयोग है वो करते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार अपने मताधिकार का उपयोग कर रहे हैं। परेशानियों के बाद भी लोग लगातार लाइनों में लगे हुए हैं। जी, लाइनों में लगे हुए हैं। देख रहे हैं दोपहर के समय भी ठीक ठाक भीड़ है वहाँ सिविल लाइंस विधानसभा में। ये पॉश इलाका है, जयपुर के बीचों बीच उपस्थित है। दोबारा राजसमंद चलते हैं राहुल के संग। इस वक्त कुछ पुरुष मतदाता भी हैं। आप महिलाओं से बात कर रहे थे, अब पुरुषों का भी रुख कर लेते हैं। उनके मन में क्या कुछ चल रहा है आज राहुल? जी, महिलाओं से बात की तो महिलाएं काफी अपना क्योंकि 7 बजे का जब से टाइम था तो महिला घर के काम भी रहते, तो भी महिलाएं यहाँ पर आ रही है। और यहाँ पर पुरुषों की संख्या बराबर है, पर दिन में पुरुषों की संख्या थोड़ी सी कम हुई है, महिला शक्ति ज्यादा बढ़ी। तो क्या कारण रहा कि सुबह पुरुष ज्यादा है और शाम को महिला? सुबह क्या है कि महिलाओं के वर्क बहुत ज्यादा रहता है। जी जी। तो महिलाओं का जो सुबह का खाना वाना बनाना, उसका घर का भी ध्यान रखना पड़ता है। और पुरुषों को क्या है कि सुबह जो वर्क होता है वो फर्क करने के लिए वो जल्दी एक बार उठ के और अपना काम धंधा करने के लिए पहले वो मतदान करते हैं। चलो, आज का दिन काफी अच्छा जा रहा है, शांतिपूर्वक राजस्थान में मतदान हो रहा है और वोटर साइलेंट है। क्या कारण है इसका? जी सर, वोटर साइलेंट है तो क्या है कि अधिकतर वोटर, मैं क्या बताऊं। जी 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 जी, क्या नाम है आपका? जी हेमंत है। जी हेमंत जी, किस तरह देख रहे हैं आज के दिन को? नहीं, बिल्कुल अच्छा है और बहुत अच्छा लग रहा है जी। और मतलब वोट डालना मतलब बोले तो हमारा अधिकार है और हम इसको मतलब यूँ लगा लो बेखूबी अच्छे से निभा रहे हैं। जी जी, और बहुत अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत। सुविधा किस तरह से मतदान के अंदर सुविधा ठीक लग रही है? ठीक है, सुविधा तो हर बार ही जो हर साल जैसे जो भी होते हैं इलेक्शन वगैरह, तो जो सुविधाएं जो होती है वो बिल्कुल मतलब अच्छे से हो रही है। कोई दिक्कत नहीं, किसी प्रकार की कोई धक्का मुक्की नहीं है। बिल्कुल अपने मतलब के तरीके से बिल्कुल वोट डाल रहे हैं और वोटर आ रहे हैं, जा रहे हैं। कोई किसी प्रकार का कोई धक्का मुक्की वाला कोई ऐसा कोई ऐसी आपत्तिजनक कोई बात नहीं है। जी, क्या योजना को सोच के इस बार लोग वोट कर रहे हैं? क्या कैसी होनी चाहिए सरकार, किस तरह की होनी चाहिए? सरकार का जहाँ तक बात है कि सरकार की तो देखो उसमें तो ये कहना तो मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन अगर आप ओवरऑल अगर देखें तो मतलब कि भारतीय जनता पार्टी ही सबसे बेस्ट है और वो ही आगे चल रही है मेरे हिसाब से। भारतीय जनता पार्टी का नाम आपने लिया, पर मोदी जी के नाम पर आप भारतीय जनता इस बार चुनाव लड़ रही है, हमने देखा कहीं कहीं लग भी रहा है और सारे नेता भी यही कह रहे हैं, क्योंकि केंद्रीय नेता इस बार यहाँ पर काफी सारे आए। छोटे छोटे विधानसभा में मोदी जी ने काफी बड़े बड़े नेताओं ने दौरे किए। कांग्रेस के पास गहलोत जी की योजना के ऊपर चुनाव लड़ रहा है और योजना के लिए बीजेपी ने भी ये कह दिया कि अगर बीजेपी आती तो ये योजना यथावत रखी जाएगी। तो वास्तव में जो अशोक गहलोत ने जो योजना चालू की थी लोगों के हित में थी, ऐसा लग? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। मेरे को तो जब तक ये लगता है कि अशोक गहलोत जी ने जो भी मतलब की योजना लागू करी है वो सिर्फ एक इलेक्शन आने से पहले ही, ठीक है, कुछ टाइम पहले ही इन्होंने इस तरीके की योजना लागू करी। वो सिर्फ एक मतलब के लोगों को मतलब के लोभान्वित करने के लिए। इसके अलावा कुछ और मतदाताओं की प्रक्रिया आ रही है। राहुल बने रहिए आप हमारे संग। कुछ और मतदाता इस वक्त बात कर रहे हैं, शायद जयपुर से ही।
बहुत ज़्यादा कचरा रहता है, बहुत गंदगी रहती है, तो हम चाहते हैं कि हमारी गली बिल्कुल क्लीन हो, ना वहाँ कोई भी सुविधा नहीं है। तो उन लोगों को ये कहना चाहेंगे कि नारी शक्ति को दृढ़ बनाएं, नारी को आगे बढ़ाएं। आज का ये जो मर्दों का ज़माना चल रहा है वो ना हो कि नारी का ज़माना आ जाए, हमारी एक यही इच्छा है। तो भैया दोनों ही विकास करेंगे। अब ऐसे हर जगह तो हम जाते नहीं है जो हमें पता लगे क्या विकास हुआ क्या नहीं हुआ। हम तो टीवी पे देख के ही करते हैं। तो हर पार्टी अपना अपना दिखाती है कि जी विकास करा है। अब पता नहीं करा है नहीं कराएगा, ये तो नेता लोग जाने या जो इधर उधर घूमते फिरते हो। अब हम जैसा बंदा कहाँ जाएगा देखने क्या विकास हुआ क्या नहीं हुआ, क्या सहूलियत दे रहे हैं क्या नहीं दे रहेंगे। अब वो बोलते हैं कि जी 200 यूनिट फ्री है, 100 यूनिट फ्री है, 6 दफ़े लिख के दे दिया, कोई फ्री नहीं है, फ्री नहीं मिल रहा कुछ नहीं। एक ही मुद्दा है, पार्लियामेंट के और विधानसभा के एक ही दिन चुनाव होने चाहिए। अरबों खरबों रुपए का खर्चा है, यही असली मुद्दा है। महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार जो हुए उनके न्याय के लिए मतदान दिया है, युवाओं के लिए मतदान दिया है, जो पेपर लीक हुए उसके ध्यान में रखते हुए मतदान दिया है, बेरोजगारी का जो स्तर राजस्थान में हो गया उसको देखते हुए मतदान दिया है, संतों की हत्या हुई उसको देखते हुए मतदान दिया है, सनातन को देखते हुए मतदान दिया है। राजस्थानी इंडिया की बात करो, ये राजस्थान क्या लेना, इंडिया है जब को राजस्थान है, इंडिया नहीं तो राजस्थान क्या रहेगा। मगर देखिए बहुत सारी चीज़ें आप मान के चलिए जो हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं, चाहे से सुविधाओं की बात करें तो रोड पर कितना ट्रैफिक है उसको कैसे आप मिटिगेट कर रहे हो, उस कंसर्न को, साफ़ सफाई, सुरक्षा, वो उन सब चीज़ों को अगर आप देखें, मेरे को नहीं लगता कि गवर्नमेंट का भी किसी भी चीज़ पे कोई ध्यान है। इट्स जस्ट लाइक फ्री फॉर ऑल, इट्स कम्प्लीटली अनडूइंग। सो इन सब चीज़ों को फोकस करते हुए जो भी आ रहे हैं, और साथ में जैसा मैंने कहा कि कुछ हद तक आप इसको नेक्स्ट ईयर के जनरल इलेक्शन से भी कोरिलेट करके देखिए कि आप एज अ होल देश के को क्या देखते हैं और उसका एक पहलू जो स्टेट लेवल पे ट्रांसलेट होगा उसको आप कैसे देखें। महिला विकास, बहुत ज़्यादा कचरा रहता है, बहुत गंदगी रहती है, तो हम चाहते हैं कि हमारी गली बिल्कुल क्लीन हो, ना वहाँ कोई भी सुविधा नहीं है। तो उन लोगों को ये कहना चाहेंगे कि नारी शक्ति को दृढ़ बनाएं, नारी को आगे बढ़ाएं। आज का ये जो मर्दों का ज़माना चल रहा है वो ना हो कि नारी का ज़माना आ जाए, हमारी एक यही इच्छा है। तो भैया दोनों ही विकास करेंगे। अब ऐसे हर जगह तो हम जाते नहीं है जो हमें पता लगे क्या विकास हुआ क्या नहीं हुआ। हम तो टीवी पे देख के ही करते हैं। तो हर पार्टी अपना अपना दिखाती है कि जी विकास करा है। अब पता नहीं करा है नहीं कराएगा, ये तो नेता लोग जाने या जो इधर उधर घूमते फिरते हो। अब हम जैसा बंदा कहाँ जाएगा देखने क्या विकास हुआ क्या नहीं हुआ, क्या सहूलियत दे रहे हैं क्या नहीं दे रहेंगे। अब वो बोलते हैं कि जी 200 यूनिट फ्री है, 100 यूनिट फ्री है, 6 दफ़े लिख के दे दिया, कोई फ्री नहीं है, फ्री नहीं मिल रहा कुछ नहीं। एक ही मुद्दा है, पार्लियामेंट के और विधानसभा के एक ही दिन चुनाव होने चाहिए। अरबों खरबों रुपए का खर्चा है, यही असली मुद्दा है। महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार जो हुए उनके न्याय के लिए मतदान दिया है, युवाओं के लिए मतदान दिया है, जो पेपर लीक हुए उसके ध्यान में रखते हुए मतदान दिया है, बेरोजगारी का जो स्तर राजस्थान में हो गया उसको देखते हुए मतदान दिया है, संतों की हत्या हुई उसको देखते हुए मतदान दिया है, सनातन को देखते हुए मतदान दिया है। राजस्थानी इंडिया की बात करो, ये राजस्थान क्या लेना, इंडिया है जब को राजस्थान है, इंडिया नहीं तो राजस्थान क्या रहेगा। मगर देखिए बहुत सारी चीज़ें आप मान के चलिए जो हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं, चाहे से सुविधाओं की बात करें तो रोड पर कितना ट्रैफिक है उसको कैसे आप मिटिगेट कर रहे हो, उस कंसर्न को, साफ़ सफाई, सुरक्षा, वो उन सब चीज़ों को अगर आप देखें, मेरे को नहीं लगता कि गवर्नमेंट का भी किसी भी चीज़ पे कोई ध्यान है। इट्स जस्ट लाइक फ्री फॉर ऑल, इट्स कम्प्लीटली अनडूइंग। सो इन सब चीज़ों को फोकस करते हुए जो भी आ रहे हैं, और साथ में जैसा मैंने कहा कि कुछ हद तक आप इसको नेक्स्ट ईयर के जनरल इलेक्शन से भी कोरिलेट करके देखिए कि आप एज अ होल देश के को क्या देखते हैं और उसका एक पहलू जो स्टेट लेवल पे ट्रांसलेट होगा उसको आप कैसे देखें। महिला विकास, बहुत ज़्यादा कचरा रहता है, बहुत गंदगी रहती है, तो हम चाहते हैं कि हमारी गली बिल्कुल क्लीन हो, ना वहाँ कोई भी सुविधा नहीं है। तो उन लोगों को ये कहना चाहेंगे कि नारी शक्ति को दृढ़ बनाएं, नारी को आगे बढ़ाएं। आज का ये जो मर्दों का ज़माना चल रहा है वो ना हो कि नारी का ज़माना आ जाए, हमारी एक यही इच्छा है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.